Hello everyone, welcome to the Talk with Feel. If you're wondering what is Talk with Feel, it is an open mic platform from last 1.5 years which let people to speak with their emotions through poetry, shairi and all the other stuff. And also now we are just starting our journey with the podcast where we explore the journey of people. Hi, my name is Shweta. I am the host of today and welcome you sir. Welcome sir. Thank you. So he is having an experience which is into the 9 years, and majorly he is having experience into the aviation industry. And after the collapse with the Jet Airways in 2019, he explores his journey into the PR hospitality, and now he is working in HR head in one of the renowned company which is in Noida. Welcome you, sir, once again. So, starting your journey from the aviation and now switching into the HR, which is into the middle ways of the PR and the hospitality. So, what makes you to go from aviation to HR? It lets you with the 9 years of experience. First of all, thank you. Thank you, Shweta, and the entire team of TWF, Talk with Field. It's a tremendous platform to explore the concern person's feeling or to explore the any profession. Yeah. As far as your question is concerned, अब हम questions पे आ जाते हैं आपके. I started my journey in 2007 in hotel industry, Hotel La Meridian in Ahmedabad. And after working in the hotel industry, I cracked the competition of, you can say not the competition, cracked the exam of aviation, that is Jet Airways in 2007 only, 2008, sorry. Okay. 2008. So 21st March 2008 was my first day in Jet Airways. And I always repeat this statement that was not a job for me, that was a family for me. I spent nearly more than 12 years over there, and 3 promotions, 4 awards. I have been awarded by CM as well. Okay. And it was the aviation sector एक ऐसा सेक्टर है कि वैसे तो सभी सेक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है एयरलाइन का सेक्टर जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है. इट्स अ ज़ीरो मिस्टेकेबल जॉब. आप कोई भी काम कर सकते हैं बिना शर्माए, क्योंकि इट्स अ वेरी लेविश लाइफ. आपको दुनिया की हर चीज़ बहुत छोटी लगती है उसके सामने, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द एयरक्राफ्ट्स, you are dealing with the captains, your lobby, your friend circle with the captains and cabin crews. So हर चीज़ आपको उसके बाद छोटी लगती है, और वही हुआ. 17th of April 2019, the entire aviation industry, not aviation industry, you can say the Jet Airways, the airlines of Jet Airways was collapsed due to some management fractured. तो उसके बाद द स्टाफ काउंट वाज 24,000, नियर अबाउट 2400 was a captain, and I was a pilot roasting officer on that time in Bombay. My posting was a Bombay, my last posting was a Bombay, in Andheri. कोलैप्स हो गई एयरवेज, एंड मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, अभी मेरे फ़ोन्स में हैं. 24,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेघर हो गए. और सिर्फ 24,000 एम्प्लॉय की बात नहीं करते हैं हम, 24,000 एम्प्लॉय की फैमिलीज़ की बात करते हैं. 13 to 14 स्टाफ वर कमिटेड सुसाइड. ओके, जो कि कहीं नहीं लिखा है ये सब चीज़ें. ये सब चीज़ें मैं बोल चुका हूँ, पहले भी प्रिंटेड हो चुकी हैं ये सब चीज़ें. उसके बाद आप जब इतनी लेविश लाइफ से आते हैं नीचे, तो कहते हैं कि अर्श से फर्श पर आना, तो वो सर्वाइवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हाँ, डिफ़िकल्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास पैसा भी होने के बावजूद भी, क्योंकि आपकी जो वर्किंग शेड्यूल है वो नियर अबाउट मोर देन 12 आवर्स है. हाँ. पता चलता है कि आपको 7 घंटे की जॉब मिलती है, 8 घंटे की जॉब मिलती है कहीं. 8 घंटे के बाद क्या? देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि 8 घंटे के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना इनबिल्ड हो चुका होता है काम कि आप बिना काम के रह ही नहीं सकते हैं. और ऑलमोस्ट एक ईयर ऑफ ईयर इंडस्ट्री में अगर आप देते हो, अगर 12 ईयर्स आपने किसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व किया अपने आप को, तो आई थिंक वो पीछे से बैकफुट जाना 8 ईयर्स या एग्जैक्टली वो 4 ईयर्स, फिर वो कहाँ होंगे. एग्जैक्टली. तो उस मोमेंट पे मैं आपको शायद इसको आप जूमिंग भी कर सकते हैं. आई विल शो समथिंग दैट इज देयर इज वन ऑफ माय कैप्टन. आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम. दिस इज ही इज द कैप्टन. He is the captain. Okay. And after the collapse of airplane, he delivered the Swiggy. Okay. Even we also delivered the Swiggy near about 3 or 4 days Okay. in Mumbai itself.
उसके बाद मैं अपने होम टाउन चला गया। वहाँ पे बहुत चीज़ें स्ट्रगल किया और देयर वाज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट, जिसमें काफी हम वो अप एंड डाउन बहुत अप एंड डाउन हुए। बट मैं आपसे सिर्फ एक ही एडवाइस कहूँगा बिफोर वी स्टार्ट और एक्सलेट आवर कॉन्वर्जेशन, कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं, लोग बुक में पढ़ते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, किताबों में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट्स की क्लासेस में पढ़ते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट। उन्हें मालूम ही नहीं है टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट करें कैसे। टाइम मैनेजमेंट का एक ही फंडा है, 24 आवर्स। आप 24 घंटे के अलावा 24 आवर्स 1 मिनट भी आप इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। 24 घंटे में 9 आवर्स आपके हैं। ये फंडा समझ लीजिए सारे लोग। 24 घंटे में से 8 आवर्स आपकी स्लीपिंग टाइम्स हैं, 1 घंटा आपका अपना है जिसमें आप अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह या अपना ऊपर इन्हांस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अपना काम करें। ये ही टाइम मैनेजमेंट है। इसके अलावा अगर आप कहीं जाएंगे, यू विल डेफिनेटली डिस्टर्ब, यू विल डेफिनेटली कंफ्यूज्ड। दूसरी बात यह है, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है हेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि एयरलाइन कोलैप्स हुई, लोगों की फैमिली कोलैप्स हो जाती है। हाँ, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड सो मेनी ऑफ पीपल हैव स्ट्रगल, मतलब उनकी फैमिलीज में अगर 4 लोग थे तो 3 लोग कोविड से सफर हुए। सो एक पर्सन कैसे वो चीज़ें कोलैप्स करे, तो मेरे पास इतना अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे कोट करना पड़ेगा यहाँ पर, मिस सोनिया गांधी। मतलब ही इज़ नॉट अ इंडियन, मतलब द नेशनैलिटी, हर नेशनैलिटी इज़ इटालियन। वो यहाँ आती हैं, उसके बाद फिर उनके हस्बैंड की डेथ होती है, उनकी सास की डेथ होती है, उनके देवर की डेथ होती है, मतलब पूरी फैमिली बस कोलैप्स। ओके, 2 बच्चे छोड़ के जाते हैं, और उसके बाद वो अपने आप को बिल्ड करती हैं, और उसके बाद एक एम्पायर खड़ा करती हैं, और एक अपनी आइडेंटिफिकेशन करती हैं। इन द सेम वे मिस्टर मोदी, ही इज़ एक्सप्लोरिंग all the countries and all the things, entire country in different world or even different countries, or even the collaboration he is doing with different countries which is impacting everyone's exactly life in they India. both the names is मतलब perfect names you can say। दुनिया के लिए ये लोग राइवल्स हैं, बट मेरे लिए ये दोनों लोग इंस्पिरेशंस हैं। इनको देख के आप और चीज़ें ना सीखें, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे सही करना है, अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करना है। दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स, यू नो। ओके, दूसरा एग्जाम्पल्स अगर हम बॉलीवुड में जाते हैं तो मिस्टर दत्त, संजय दत्त, इतना स्ट्रगल करने के बाद कैसे इनहांस करना है, ही इज़ अबव 60। मतलब उन्होंने जो अपनी लाइफ स्पेंड करी है इवन ड्यूरिंग द जेल टाइम, आप वो क्या एग्जैक्टली आप सिर्फ मूवीज मत देखिए, आप सिर्फ बायोग्राफीज पढ़िए इन लोगों की, और उसके बाद जस्ट ट्राई टू एनहांस योरसेल्फ। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ अगर आपकी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है। लोग चले जाते हैं, 3 या 4 दिन लोग याद करते हैं, 40-50 दिन लोग जिक्र करते हैं, और सालों साल बीत जाते हैं। जब आपका कभी नाम आता है तो लोग हंस के ओके अच्छा इंसान था। इतना टाइम नहीं है किसी के पास। हाँ, और आज के टाइम में तो और भी नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज सो मच बिजी इन देयर ओन लाइफ। और इधर आज का एक बहुत बड़ा कोटेशन चल रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ। कुछ चीजें मतलब उस चीज में ही डिपेंड है कि इवन द यूथ, इफ आई एम द यूथ, सो आई एम ऑल्सो इनटू द सेल्फ लव फेज या फिर सेल्फ केयर फेज। मतलब बहुत कम लोग हैं जो हम लोग केयर करते हैं, या जिनका सिर्फ अपनी फैमिली और 1-2 फ्रेंड्स हो गए जो हमारे क्लोज वन है उनके साथ। लेकिन जैसे आपने अभी एक हाईलाइट किया कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लोग लेकिन काफी कंसर्न भी हैं अपनी हेल्थ को लेके। लाइक अगर आप देखो तो ओल्डर पीपल आर आल्सो डूइंग योगास एंड दे आर टेकिंग सो मच ऑफ केयर अबाउट देयर हेल्थ, फिटनेस। कि अगर कोई चीज है, इवन यूथ तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग जिम। बिल्कुल, इधर फॉर द ट्रेंड दे आर गोइंग, बट दे आर गोइंग फॉर द जिम। बिल्कुल। बट मैं तो यही एडवाइस दूंगा लोगों को, इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेल्फीज, प्रॉपर डू द जिम्स। ओके, प्रॉपर डू द योगास, और इन्हांस करिए अपने आप को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि हाथों की लकीरों पे ना जा गालिब, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ तकदीर पे बैठे रहें या ऊपर वाले पे बैठे रहें, हो सकता है ऊपर वाला आप पे बैठा हो। हाँ, ये चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे कुछ चीज़ें एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, देयर शुड बी ऑलवेज अ लिमिट। एग्जैक्टली।
अगर कोई चीज़ बहुत ओवर हो जाती है तो वो भी कहीं न कहीं हार्मफुल है। जैसे कि हमने काफ़ी केसेस सुने हैं कि ड्यूरिंग जिम अगर ज़्यादा करो तो यू गेट द हार्ट अटैक और समथिंग लाइक, जो मैंने भी सुना है जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, ही वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट आल्सो, बिकॉज़ उनकी जो चीज़ें आई थी रिपोर्ट्स वो उसी बेसिस पे आई उसी थी। बेसिस पे। तो वो बहुत चीज़ें होती हैं कि लाइफ में आपको कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, लिमिट में करो, बट वो चीज़ें फिर आपको चीज़ें एग्जैक्टली रिजल्ट अच्छा एग्जैक्टली मिलेगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपने एविएशन इंडस्ट्री में स्टार्ट किया 12 आवर्स योर वर्क, राइट, एंड नाउ यू आर वर्किंग एज एन एचआर, सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस आई वुड से. So what exactly you are putting out in 8 and 9 hours, and what you are doing after that, like something you are exploring, something you are doing? Exactly, I have my own family business, my catering business, and I have my farm, my fish farms and all. So I'll Okay. take care after I have after the After completion. the jobs and all. Exactly. So you are like, so now you are managing more Most like of the all things. kind of people. Like Exactly. they will be young, they will be in every kind of people are there. So what you have learned from your whole experience, like कोई ऐसा point जो आप share करना चाहोगे youth को especially, because youth are very confused nowadays. एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए. रीडिंग हैबिट्स आप बढ़ाएं अपनी, लर्न हर छोटी छोटी चीज़ों से. आप एक रिक्शे वाले, ई रिक्शे चलाने वाले से भी कुछ सीख सकते हैं. हाँ. ओके, तो ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है. आप कोई ना कोई क्वालिटी लेके जाइए. लर्निंग हैबिट कभी नहीं ख़त्म होनी चाहिए, ये मैं यूथ को बोलूँगा. दूसरी बात, इन्हांस योर सेल्फ. AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इन द मार्केट. ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे उसके, बट आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आपको इन्हांस के लिए कोई रोके ना. एविएशन सेक्टर मैंने जो बोला था आपको, वो इसीलिए बोला था. एयरलाइंस को, एयरलाइंस अपने आप में एक सक्षम पैकेज है, पूरा प्रोफेशनल पैकेज कह लीजिए, कि वो सब कुछ सिखा देता है. हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, ओके, द कॉन्फिडेंस लेवल. If you are dealing with the film actors, you are dealing with the politicians, you are dealing with the industrialist, you are dealing with the, मतलब पूरा सब कुछ आपके एक अंडर वन फ्लोर है. तो सब कुछ छोटा लगने लगता है आपको, हर चीज़ छोटी लगने लगती है. आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड कर सकते हैं. मैंने कोलैप्स के बाद मैगी काउंटर लगाए हैं बरेली में. अच्छा. हाँ, नेस्ले के मैगी काउंटर्स लगाए हैं. रात में मैंने खुद मतलब कुकिंग की है वहाँ पे. तो लोग बहुत सरप्राइज्ड ऑन दैट टाइम कि द पायलट होस्टिंग ऑफिसर, और उसके बाद फिर मैगी के काउंटर्स. तो पॉडकास्ट भी लोगों ने उस टाइम, तो खैर 2019 में इतना पॉडकास्ट का नहीं हुआ था, लेकिन यूट्यूबर्स ये काफ़ी लोग आए थे हमारे काउंटर्स पे. बट उसके बाद फिर कोलैप्स हो गया इस वजह से, क्योंकि वो कोरोना लॉकडाउन आ गया. तो इसलिए कभी कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है. हाँ. आप ये सोचें कि मैं सिर्फ बड़े से ही आया हूँ तो मैं बड़ा ही काम करूँगा. नो, नॉट एट ऑल, नथिंग. क्योंकि लाइफ आई थिंक वो एक गॉड के ऊपर एक सुपर पावर भी होती है कि वो Exactly. आपको बड़ा भी बना सकता है, वो छोटा भी Exactly. बना सकता है, डिपेंड करता है आपका बिहेवियर. He always checking, he always checking you कि whether you are suitable for the concerned condition or not. आप इस पे capable हैं या नहीं हैं. As you already said that you are also the HR. Yes. Even I am also a HR. Yeah. So क्या काम है कि we have to rectify the profile of the candidate first of all. Yes. We have to examine the candidate profile. We have to examine the background of the candidates. तो यही चीज़ ऊपर वाला कर रहा है आपके साथ में, वो आपको एग्जामिन कर रहा है कि आप उस सुटेबल कंडीशन पे, पर्टिकुलर कंडीशन पे सुटेबल हैं या नहीं हैं. हैं तो वो एक्सप्लोर कर देगा आपको, नहीं है तो फिर खुदा हाफिज. हाँ, तो है. और कहने की ये भी है कि एक अपना बिहेवियर होता है कि अगर आप जितने डाउन टू अर्थ हो, इवन गेटिंग सो मच ऑफ सक्सेस, Exactly. वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में और आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है. क्योंकि अगर आप देखोगे कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, या फिर अगर आप रतन टाटा जी को देख लो, उनकी एक हैबिट है, वो कहीं ऐसे मीडिया लेकर या फिर कुछ चीज़ें नहीं करते, वो एक ऐसी चीज़ें करते. जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ उनका देखा है दैट ही अलाउड द डॉग ऑल्सो इन देयर ऑफिस. Exactly. सो विच इज़ वेरी बिग इनिशिएटिव दैट ही हैज टेकन, और बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी काफ़ी अच्छे से मतलब वो करते हैं, ताकि वो उनका Exactly. एक इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद आप उनकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों से सीखते हो कि बहुत हाँ, important है, बहुत वो important. इम्पोर्टेंट चीज़ें मायने रखती है. तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने एविएशन इंडस्ट्री में स्टार्ट किया तो आपकी कौन सी ऐसी 3 चीज़ थी जो वहाँ पे लुक आउट की जाती है, इधर इट्स डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क ऑफ द पीपल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं. देखिए श्वेता, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा. मैं आपको सिर्फ एक नटशेल में बताता हूँ कि
कोई ये कहते हैं कि डिसिप्लिन इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट और ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज है, नहीं। आपको अपना डिसिप्लिन अपने साथ लेके चलना है। पहली बात, हर बिजनेस में देखेंगे डाउनफॉल आ रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, हुंडई को ले लीजिए वो बंद हो रहे हैं, कितने होटल सेक्टर्स बंद हो गए, बैंक्स बंद हो गए हैं, सही है। वो क्यों बंद हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं? लोग कहते हैं कि लोग गरीब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बंद का लॉजिक ये है कि मैनेजमेंट फ्रैक्चर्ड, इतना ज़्यादा नेगेटिव क्लॉज है ये, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं मैनेजमेंट के सामने। आप पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, आप एचआर की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, आप सीईओ की लेवल पोजीशन लेके बैठे हैं और मैनेजमेंट के सामने बोल नहीं पा रहे हैं। मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, आपको अपनी सैलरी से मतलब है नहीं। यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मॉर्निंग मीटिंग कि नहीं सर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ये चीज़ के लिए, आप एक्सप्लोर कर दीजिए इस चीज़ को जो मैं देख के आया हूँ। 126 जहाज का मालिक नरेश गोयल आज जेल के अंदर बैठे हैं। ओके, अभी 4-8 दिन पहले उनकी वाइफ की कैंसर से डेथ हुई है। 126 जहाज का मालिक, आप इमेजिन कर सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है उसके साथ में? जहाज सड़ रहे हैं उसके बॉम्बे एयरपोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट फ्रैक्चर्ड हो गया, उसे मालूम ही नहीं है कैसे मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। यही प्रॉब्लम है, कोई देखने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैंने कंपनी हायर कर ली है, मैंने कंपनी एक्सप्लोर कर ली है, मैंने 80 लाख लगा दिए, मैंने 200 करोड़ रुपए लगा दिए कंपनी के अंदर, मैंने इतना एम्प्लॉय हायर कर लिए और मैं ही सब कुछ सक्सेस हो। नो, कहीं ना कहीं जरूर लूप होल है आपके अंदर जो कि आप शर्मा रहे हैं कहने में। और अगर कोई एम्प्लॉय आपको बोल रहा है तो आपको वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो आपको डूबना है निश्चित। आज नहीं डूबेंगे, 10 साल के बाद डूबेंगे, मैं ब्लैंक पेपर पर लिख सकता हूं। और रही बात इस चीज की, वी आर द एम्प्लॉयज नॉट द ओनर्स। हम लोगों के लिए स्काई इज द लिमिट, हम कहीं भी जा सकते हैं। यू आर द ओनर्स, आपको डरने की जरूरत है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरा चैलेंज है उन लोगों को कि अगर जो लोग इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हैं तो प्लीज बी ऑन टोज, पुट योर शूज ओके एंड पुल योर बेल्ट्स, कि आप अपनी कंपनीज को चलाइए एक एम्प्लॉय का ध्यान रख के, एक मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में। आपकी कंपनी को कॉस्ट कटिंग की जरूरत है। आप बिल्कुल एक्सप्लोर मत करिए, दुनिया को मत दिखाइए कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। आप कॉस्ट कटिंग के साथ लेके चलिए, सैलरीज टाइम पे दीजिए लोगों की, लेबर लॉ को फॉलो कीजिए, ये सब चीजें फॉलो कीजिए। नहीं कर पाएंगे तो फिर एक नया जेट एयरवेज की कहानी दोबारा खड़ी हो जाएगी। 101% खड़ी होनी है ये चीज। दैट्स ट्रू, बिकॉज़ आई थिंक एम्प्लॉय वेलफेयर और एम्प्लॉय वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई ये कहे कि हम वी आर द बेस्ट, नो वन इज बेस्ट। एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो पहले काम करके आ चुका है, उसके लिए फ्लोर खुला हुआ है, वो जा सकता है। आपने 200 करोड़ रुपए लगाए हैं, आपको दोबारा लगाने के लिए 10-15 बार सोचना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है, जिस टाइम वो जीरो पे था उस टाइम उसको जरूरत थी, आज ही एज एक्सपीरियंस, तो उसके लिए फ्लो द स्काई इज द लिमिट। तो सोचना अब आपको है, ना कि एम्प्लॉय को है। हाँ, वो पॉइंट मैं भी एग्री करती हूँ। दूसरा, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको देखना है, आप वहां पे न्याय करिए, अन्याय मत कीजिए। मैं एम्प्लॉय के लिए कह रहा हूं, एम्प्लॉयर के लिए नहीं कह रहा हूं। दिस मैसेज फॉर ऑल द एम्प्लॉय, उनके लिए कह रहा हूं कि आप अपनी कंपनी के लिए लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें, ओके, पंक्चुअल रहें। ये नहीं है कि आप जा रहे हैं, अब मन कर रहा है, आपने मैसेज डाल दिया कि आई विल नॉट कम जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिक लीव, नथिंग। जो लोग एक्सीडेंट में पड़े हुए हैं वो तक IAS PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं। जिनकी मदर की डेथ हुई है वो कैबिन क्रूज फ्लाई कर रही हैं और लैंडिंग पे उन्हें खबर मिल रही है कि उनकी माँ या उनके फादर जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। वो लाइफ भी देखिए, आप एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को। हाँ, ये पॉइंट तो एकदम वैलिड है, बिकॉज कहीं ना कहीं बीइंग एन एम्प्लॉय ये सोचता है कि क्या है, सिर्फ सैलरी तो है, सैलरी तो आ जाएगी। लेकिन मैनेजमेंट भी उस टाइम पे फिर वो अगर कोई एक्शन लेता है एम्प्लॉय के लिए तो एम्प्लॉय को लगता है ये तो मुझे ही डांट रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए, ऐसा पॉइंट है। मेरा जो मैसेज है वो दोनों के लिए है, एम्प्लॉयर के लिए भी है और एम्प्लॉय के लिए भी है। एम्प्लॉयर के लिए इसलिए है क्योंकि उनने पैसा लगाकर अपना एक एम्पायर खड़ा करा है। एम्प्लॉय के लिए इसलिए है क्योंकि वो कंपनी को चलाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ दोस, उसकी एबिलिटी के बेसिस पे वो एम्प्लॉय कंपनी चलाएगा। हाँ, ऑब्वियसली। तो ही शुड बी लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी, ही शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स द कंपनी, दैट्स इट। बट स्टक नहीं रहे। अगर ही हैज अ गुड अपॉर्चुनिटी, मूव इट, बट डू नॉट स्पॉइल द रिलेशनशिप विद द प्रीवियस कंपनी। हाँ, दैट्स ट्रू, बिकॉज अगर आप प्रीवियस कंपनी से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर इन रिटर्न, बिकॉज वी ऑल से दैट अर्थ इज अ सर्कल, तो कहीं ना कहीं आप टकराओगे अगेन एंड अगेन। वो कहीं चीजें वो कहीं ना कहीं आएंगी उसमें, डेफिनेटली। और जो आपने एक बात करी लूप होल्स की,
ऑब्वियसली जो कंपनी डूबती है उनका एक लूप होल्स ऑलरेडी रहता है, इधर इट्स बीइंग फ्रॉम द टीम, इधर इट्स बीइंग किसी भी चीज से, या फिर जो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए एंजल इन्वेस्टर, वहां से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, या फिर मैनेजमेंट का एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर क्लियर है, तो एम्प्लॉय फिर स्ट्राइक करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट करता है। Exactly. तो फिर कंपनी को एक डिसीजन लेना ही पड़ता है, एंड दे बिकम बैंकरप्ट और समथिंग व्हाटएवर दे डू। Exactly. और ईदर दे स्टार्ट विद द मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कि वो लाइक मोस्टली बैंक्स करते हैं आज के Thanks टाइम में। करती हैं। विद दैट मैसेज, अगर आपने अभी जैसे कहा कि आपने मैगी का स्टॉल भी लगाया है, आपने बहुत सारी चीजें स्विगी के लिए भी, मतलब स्विगी में डिलीवरी करी है, जैसे आपने अभी एक सर की भी फोटो दिखाई, तो डिड यू हैड अ प्लान बी ऑलवेज कि हम अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो आई विल गो फॉर एवरीथिंग दैट यू लुक फॉर?